Hare Krishna. We'll begin our session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय. Hare Krishna. Welcome to all of you for this session of Bhagavad Gita. We'll continue to do 11th chapter. 11वें अध्याय हम कंटिन्यू करेंगे. Very nice purport we read last time. I want to repeat it. It was the 34th verse. The purport was very nice. Every plan is made by the Supreme Personality of Godhead, but he is so kind and merciful to his devotees that he wants to give credit to his devotees who carry out his plan according to his desire. A lot of things are there for us to learn in this one particular long sentence. तो बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पे. What is the first thing we are learning? Every plan is made by the Supreme Personality of Godhead. हर योजना हमारे जिंदगी में, किसी और की जिंदगी में, इस जगत में जो भी हो रहा है, उसका योजना, उसका प्लानिंग कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्णा कर रहा है. But he is so kind and merciful to his devotees. लेकिन वो अपने भक्तों के ऊपर दया और कृपा तीव्र मात्रा में रखते हैं. तो क्या करते हैं? That he wants to give credit to his devotees. काम तो वो करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट, उसका नाम भगवान किसको देना चाहते हैं? अपने भक्तों को देना चाहते हैं. कैसे भक्तों को? To his devotee to carry out his plan. जो भक्त उनके योजनाओं के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर. भगवान की इच्छा के अनुसार जो भक्त अपने जीवन को चलाता है, बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव द प्रीचर्स. इस योजना में भगवान का साथ जो देते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो अपने जिंदगी को चलाते हैं, सो फॉर देम द लॉर्ड वांट्स टू गिव क्रेडिट. लॉर्ड विल नॉट गिव क्रेडिट टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी. हर एक को तो क्रेडिट नहीं देंगे भगवान, लेकिन खास तौर पे ही विल गिव क्रेडिट टू हिज डिवोटीज हु आर एग्जीक्यूटिंग हिज प्लान अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर. तो ये हमें इन दिस वन सेंटेंस सो मच ऑफ लर्निंग. पूरा भगवत गीता का लर्निंग इस सेंटेंस में आ गया. ये हमें अपने जीवन को कैसे निरूपण करना है इस एक सेंटेंस के आधार. देन life should therefore move in such a way that everyone acts in Krishna consciousness. हमारी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाना है? हमें कृष्ण भावनामृत में स्थित होके गुरु और भगवान के उपदेशों के अनुसार, आपके प्रीचर्स के वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द गुरु, उनके मार्गदर्शन के अनुसार आपको चलना चाहिए. And understand the supreme personality of Godhead through the medium of a spiritual master. तो हमें भगवान को कैसे समझना है? 3 प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण. There are three types of what we can say evidences. First evidence is pratyaksha, what you have heard from others, what you have seen, that is pratyaksha pramana. Then अनुमान प्रमाण. अनुमान प्रमाण क्या है? आपने कुछ सुना लेकिन आपने देखा नहीं, तो आपने उसके ऊपर निष्कर्ष किया. You made your own conclusions. You came to your own conclusions. तो ये अनुमान प्रमाण है. तो trying to hypothesize. साइंटिस्ट करते हैं. कैसे साइंटिस्ट का एक डिस्कवरी करते हैं या इन्वेंशन करते हैं
एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ के वो एक निष्कर्ष पे आते हैं, एक तर्क पे आते हैं। दिस इज अनुमान प्रमाण। द थर्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव एंड द बेस्ट वे of pramana is of evidence is shabda pramana. Shabda pramana is, in the first one also we said hearing, but this hearing is not hearing from anyone else. This hearing is hearing from authorized sources. अधिकृत जो स्रोत है उनसे जो सुनना, from scriptures, from the guru's lectures, from your preachers. When you hear and you execute, that is called Shabda Praman. Living your life according to Shastra. So that way we will also develop Shastra Chakshusha. So this Pratyaksha Pramana is with Shastra Chakshusha. वो दिव्य, वो भगवान की दिए हुए ज्ञान के नेत्रों से अपने जीवन को देखता है, दूसरों का जीवन देखता है, इस जगत को देखता है और आगे बढ़ाता है. So The plans of the Supreme Person of Godhead are understood by His mercy. और भगवान की योजना हमें कैसे पता चलेगा? आप तो बोल रहे भगवान की योजना के अनुसार चलिए, लेकिन हमें भगवान की योजना कैसे पता चलेगा प्रभु जी? भगवान की योजना कैसे पता चलेगा? एक ही मार्ग है. क्या मार्ग है? बाय हिज मर्सी. उसकी दया से ही हमें भगवान की योजना समझ में आएगा. तो भगवान की दया कैसे आएगा? We will be eligible to gain Lord's mercy by serving the Supreme Lord, having faith in Him and serving Him. भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धा से जब हम भक्तिमय सेवा भगवान और गुरु को करते हैं, तब भगवान संतृप्त होते हैं और अपना हेतु रहित कृपा, कॉजलेस मर्सी. ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ किया इसीलिए उसके अनुसार आपको मिल रहा है. नो, we cannot do that much that is required to gain the Lord's mercy. भगवान की कृपा पाने के लिए हम खुद जितना करना चाहिए हम कभी नहीं कर पाएंगे. But Lord is so merciful. That's why जैसे ना भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं. He will give by His causeless mercy. आपको 1 मार्क्स आना था, आपको 100 मार्क्स मिल जाएगा. ये भगवान की कृपा है. But He will want you to put your hand. तो प्रभु जी इसका मतलब है तो हमें तो कुछ नहीं करना है. नो, you have to put your hand, you have to put your mind, you have to use your intelligence, you have to use your human body, your human life, your human intellect. भगवान के दिए हुए सब कुछ आप भगवान की सेवा में यूज कीजिए. आपकी बुद्धि, आपके इंद्रिया, आपके जो बंधु हैं, आपके परिवार वाले हैं, आपके जो धन राशि है, आपके पास जो भी है, खुद आपके शरीर और आपके आत्मा सब भगवान की सेवा में जब हम लगाएंगे, then we will get His causeless mercy. The plans of the Lord are, the plans of the devotees are as good as His plans. जो भक्त जब योजना बनाते हैं, भक्त जो योजना बनाते हैं कैसे बनाते हैं, बैकग्राउंड क्या है उसका? बैकग्राउंड इज शास्त्र, बैकग्राउंड इज गुरु का मार्गदर्शन, बैकग्राउंड इज कृष्णा's instruction. So when we hear to the devotees plans for us, or the devotees plans for example for a temple, or when you ask them some questions, जब आप उनको कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपको उत्तर देंगे वो, so that plan that they give you is as good as God's plans. Why is that? Because that is coming from the Guru's instructions. So साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य. So तो गुरु का जो बोधन है और भगवान का इंस्ट्रक्शंस है, और गुरु और भगवान के बीच कोई भेद नहीं है. Is as good as God. We have to treat our Guru, spiritual master Srila Prabhupada, as good as God. But Guru will never claim that he is God. कोई भी गुरु अपने आप को भगवान कभी नहीं कहेगा. ये अपराध कर लेगा कोई ऐसा बोलेगा तो. और अगर कोई ऐसा बोल रहा है वो गुरु है ही नहीं. फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन, जो अपने आप को भगवान बोल रहा है वो हमेशा अपने आप को मैं भगवान का सेवक हूं बोलते हैं. कहीं पे भी आप प्रभुपाद के कोई भी लेक्चर, कोई भी परपट पढ़िए, एक जगह आपको ये नहीं मिलेगा कहाँ जहां पे प्रभुपाद ने बोला है where Prabhupada said I am God. But you find all unscrupulous
so-called gurus will proclaim them as God. This is the first thing we have to see and immediately reject them. They are not at all fit to be spiritual master. He is the spiritual master who is always telling that I am the servant of Lord. And he is the spiritual master who is going to make his disciple servant of God. लेकिन सर्वेंट ऑफ गॉड बनने से पहले सर्वेंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर बनना है. मतलब इंटर्नशिप, आपको एक इंटर्नशिप करना है. देयर आर सम डॉक्टर्स हु जॉइंड अस, दे नो व्हाट इज इंटर्नशिप. तो उससे पहले हमें प्री क्लिनिकल्स करना होता है. प्री क्लिनिकल्स में हमें डमी पेशेंट्स पे काम करना होता है. पहले उन पे प्रयोग करो, फिर धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स आपको दिया जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक वैसे ही when we serve the spiritual master, you are an apprentice of what you will be doing in Goloka Vrindavanam. And in Goloka Vrindavanam also you will serve the Guru while you are serving your Lord. While Radha Vrindavan Chandra का सर्विस जब आप करेंगे तो वहां पे गुरु का सेवा भी होगा. So this is one should follow such plans and be victorious in the struggle for existence. जिंदगी के भाग दौड़, जिंदगी के स्ट्रगल, सब लोग मतलब तंग आ चुके हैं. they have got defeated by the struggle for existence. But here it is said that when we go by the Lord's plan, भगवान की योजना के अनुसार जब हम जाएंगे, भगवान की योजना कैसे पता चलेगा? भगवान की कृपा से, by Lord's mercy. How do we gain Lord's mercy? By serving spiritual master, his institution, taking diksha under him, and serving him nicely, and serving the supreme Lord. Because गुरु आपसे क्या कराएगा? आपको भगवान की सेवा कराएगा. तो जब हम ऐसे करेंगे, we'll become I cannot say the word eligible, but we'll become recipients of the Lord's mercy. So I thought that we should repeat that purport because it had such a sound meaning, pun intended. शब्द भ्रमण था उसमें. So last shloka which we completed last class was Sthane Rishikesha Tava Prakirtya Jagat Prarushyati Anurajyate Cha Rakshamsi Beetani Disho Dravanti Sarve Namasyanti Cha Siddha Sangha. The purport which we read was of shloka number 34. The last shloka we did yesterday, last class was this shloka. Just recap of what the shloka is. Hey Rishikesha, O Rishikesha, the world becomes joyful. Jagat prarushyati. जगत में आनंद का महसूस लोग करते हैं. तब upon hearing your name, तब प्रकीर्त्या, जब भगवान की कथा, कृष्ण कथा हम सुनेंगे, हरे कृष्ण मंत्र जप हम जब करते हैं और उस शब्द को हम सुनते हैं, जगत प्ररुष्यति, जो दिल का साफ है उसको आनंदमय का अभ्यास, आनंदमय का जो एक्सपीरियंस है, द एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस ही विल हैव. तो प्रभु जी हम तो सालों साल जपा कर रहे हैं, तो हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता. दैट इंक्लूड्स मी. क्यों नहीं लगता? हमारे हृदय के ऊपर इतना धूल मिट्टी, भौतिक मानसिकता का इतना धूल मिट्टी इसके ऊपर है कि उसके लिए समय लगेगा. जितना ज्यादा धूल मिट्टी है उतना ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए भी भगवान की दया चाहिए. हमारे जीवन में जो भी हमें मिलता है वो भगवान की दया से मिलता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो. फिर से मैं बोल रहा हूं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जो लोग हमारी जिंदगी में आ रहे, जो लोग हमारी जिंदगी से जा रहे, लॉर्ड इज ऑलवेज हैविंग द बेस्ट प्लान फॉर अस, स्पेशली फॉर अ डिवोटी. फॉर अ नॉन डिवोटी कर्मा इज गाइडिंग. कर्म के अनुसार उनको जो मिलना है वो मिलेगा और उनको जो खोना है वो खोएंगे. लेकिन भक्तिमय जीवन में, भक्त के जीवन में लॉर्ड विल पर्सनली टेक इंटरेस्ट और उसी चीज को देगा जो जिससे उसका भक्ति आगे बढ़ेगा, और उस चीज को ले लेगा जिससे उसका भक्ति का खंडन होगा. तो लॉर्ड विल लाइक ए डोटिंग फादर. Many of you are fathers, many of you are mothers here, many of you may be elder sisters. How do you take care of your younger siblings or your children? You will never give them that is harmful to them, even if they are crying, even if they make tantrums. आप कभी नहीं देंगे उन्हें.
और बिन मांगे जो उनके लिए उचित है आप दे ही देते हैं। तो लॉर्ड इज ऑल्सो लाइक दैट विथ हिज डिवोटीज। तो ये हमें समझना चाहिए, हमें केवल भक्त बनना है। अ सन मस्ट ओनली बिकम ए गुड सन, ही डजंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। क्या आपके बच्चों को कभी सोचना पड़ेगा कि कल माँ मुझे खाना देगी कि नहीं? कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। वो सोचेगा तो वो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। मेरा बाप मुझे स्कूल भेजेगा कि नहीं, सोचना पड़ेगा? नहीं। कल मेरा जिंदगी क्या होगा, मेरे कपड़े कैसे आएंगे, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लाई आ जाता है, बिकॉज यू आर अंडर द शेल्टर ऑफ द पेरेंट्स। सिमिलरली, तो ठीक वैसे ही जब हम भगवान की आ, आ, शरण में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लाइक अ डोटिंग फादर ही विल गिव अस व्हाट इज गुड फॉर अस, एंड ही विल टेक अवे व्हाट इज नॉट गुड फॉर अस। बाय डूइंग दैट इज गुड फॉर अस। तो भगवान जो भी हमारी जिंदगी में करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। एक्चुअली नास्तिक के जीवन में भी भगवान अच्छे के लिए ही करते हैं। उनके जीवन में जो भी हो रहा है, भगवान माया की योजना से इतना मार देते हैं उनको, लेकिन कुछ लोग इतना डल हेडेड होते हैं, समझते नहीं है। तो बहुनाम जन्मनामन्ते, फिर ज्ञानवान, फिर माम प्रपद्यते। और ज्ञानवान भी बहुनाम जन्मनामन्ते, ज्ञानवान बनना है। और वैसे बहुजन्म के बाद वासुदेव सर्वमिति, ये समझ में आएगा कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, हर जगह भगवान है। स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्मा बहुत ही विरल है इस जगत में हमें पाना। सो although the perfected beings offer you the hospitable homages, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। भक्त हमेशा भगवान को देख के प्रसन्न होते रहते हैं, उनका नाम, उनका दर्शन करके। उल्टा किसके साथ हो रहा है? राक्षस के साथ। राक्षस के साथ क्या हो रहा है? द डेमन्स आर अफ्रेड एंड दे फ्ली हियर एंड देयर, रक्षांसि बीतानि दिशो द्रवंती। राक्षस का क्या हाल है? भगवान का नाम सुनते ही, भगवान का नाम स्मरण कीर्तन सुनते ही, भगवान का दर्शन करते ही उनको भयभीत होना, उनके अंदर भय का उत्पन्न होता है और वो भाग जाते हैं। सो ऑल दिस इज राइटली डन। तो ये एक योजना के अनुसार, भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है। सो वॉट एवर कृष्णा डस इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस, चाहे भक्त हो चाहे नास्तिक हो, तो सबके जीवन में भगवान अच्छा ही कर रहे हैं। इवन टू द बैड चाइल्ड, the parent is always wishing good and trying to do good for her. He will never do bad things. No parent will do bad things even for a bad child. So similarly, Lord is, He will never wish or do bad things for us. जो so called bad things हमारे जिंदगी में आ रहा है वो कर्म के अनुसार आ रहा है। भक्त के जीवन में वो क्या सोचेगा, इससे ज्यादा मिलने वाला था, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा से उसको काट के इतना सा दिया है, बस बस मेरा चेतावनी के लिए, तो मेक मी अलर्ट, संभलना है अभी, वरना फिर खो जाओगे। तो many many of your lives, at least in my life, many times when we happen to do something wrong, the Lord interferes, the Lord intervenes, He will make the adjustments. हमें लगता रहता है क्यों भगवान ऐसा कर रहा है, why is he doing, मुझे तो इतना मजा आ रहा है, मुझे तो इतना आनंद आ रहा है, why is Lord taking away this, why is Lord depriving me this? बट कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि अरे ये तो अच्छे के लिए हुआ है, वरना हम तो बहक जाते, हम तो बह जाते, खो जाते। तो विद दिस फेथ द भक्त शुड go ahead in his life. We'll move ahead to 37th shloka. तस्मात् चतेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणो अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्. Very interesting being said here. In this shloka, we are coming to know God is great. Allahu Akbar. God is great. भगवान असम ऊर्ध्व है। तो इस श्लोका में हमें पता चल रहा है, एंड इस श्लोका में ये भी पता चल रहा है हाउ ग्रेट गॉड इज। नॉट ओनली गॉड इज ग्रेट, हाउ ग्रेट इज, भगवान कितने महान हैं, इस श्लोक में हमें
पता चल रहा है। व्हाट इज दैट? ओ ग्रेट वन, महात्मा, हु स्टैंड्स अबव इवन ब्रह्मा, गरीयसे ब्रह्मणो। तो जो ब्रह्मा के ऊपर भी है, जो ब्रह्मा के ऊपर है, ऐसे भगवान, उसको मैं नमन करता हूँ। तो यू आर द ओरिजिनल मास्टर, तो आदि कर्त्रे, तो आप सब कुछ आप ही कर रहे हो, सबका इंस्ट्रक्शन, सब इंस्ट्रक्शन आप ही दे रहे हो। तो व्हाई शुड दे नॉट ऑफर द होमेज अप टू यू, वो लिमिटलेस वन? तो फिर आपके भक्त आपको नमन क्यों ना करे? कस्मात चते न नमय नमेरन, तो हर भक्त आपको नमन करेगा, इसीलिए करेगा क्योंकि आप ब्रह्मा से भी ऊपर हो और आप आदि कर्त्रे हो। और रेफ्यूज ऑफ द यूनिवर्स, जगन निवास, आप सारे भक्त का शेल्टर हो। गतो मुकुंदम शरणम शरण्यम, तो भक्त का गति क्या होता है? मुकुंद, मुकुंद के शरण में जाना। गतो मुकुंद शरण शरणम शरण्यम, ही इज वर्दी ऑफ सरेंडर। एक ही व्यक्ति है जो हमें, जिसको हमें अपना समर्पण कर देना चाहिए। कौन है? भगवान श्री कृष्ण, बिकॉज ही इज वर्दी ऑफ इट। गतो मुकुंदम शरणम शरण्यम। Then what happens? Parirutya kartham. Then we will not be having any obligations. Devarshi bhutapta nunam pitruna nayam kinkaro nayam rajam. So we will have no obligation on anybody, but will not become irresponsible. तो जो भगवान ने हमें रिश्ते नाते दिया है, उसको जितना मात्रा में हमें चलाना है, उतना मात्रा में हम बहुत ही अच्छी तरीके से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने जैसे चलाएंगे, बट वी विल नॉट गेट अटैच्ड। सो यू आर द इनविंसिबल सोर्स, तो आप आदि कर्त्रे हो, आपसे ही सब कुछ आ रहा है। तो द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, तो आप ही से तो सब कुछ हो रहा है। तो सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं। देन you're transcendental to the material manifestations, तुम अक्षरम सत असत तत् परम यत, तो आप ये असत चीजों से आप परे हो, आप ट्रांसेंडेंटल, आप यू आर ट्रांसेंडेंटल टू ऑल मटेरियल थिंग्स, आप दिव्य हो, यू आर नॉट अफेक्टेड बाय मटेरियल कॉन्शियसनेस, एंड यू आर अनंता, यू आर अनलिमिटेड, यू आर देवेशा, यू आर गॉड ऑफ डेमिगॉड्स, सारे देवताओं का देवता देवेशा भगवान श्री कृष्णा है। So you see, by this we are coming to know Lord is great, and we have understood how great He is. That is why I said that in this shloka we'll come to know how great the Lord is. So we'll read the purport. By this offering of obeisance, that's why I said this chapter, 11th chapter, although it is Vishwarupa, so naam hai Vishwarupa, material form, but it comes under the chapters of bhakti because so much of bhakti is derived from the purports by Prabhupada. So Arjuna indicates that Krishna is worshipable by everyone. Krishna का पूजा कौन कर सकता है? कृष्णा का आदर कौन कर सकता है? हर व्यक्ति। There is no what is the limitation? ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकता और ये कर सकता है। No, everybody can serve the Lord and take the blessings of the Lord. He is all pervading, हर जगह पे है। तो and he is the soul of every soul. आत्मा का आत्मा है वो, क्योंकि वो है आत्मा, मतलब उसका अस्तित्व है, क्योंकि परमात्मा है इसीलिए आत्मा का अस्तित्व है। अगर परमात्मा नहीं है तो देयर इज नो एग्जिस्टेंस फॉर अस, दैट्स व्हाट इट मींस। So Arjuna is addressing Krishna as महात्मा। तो who is a महात्मा? जो वासुदेव को जानता है वो महात्मा है, और स्वयं वासुदेव भी महात्मा है। So there are only two Mahatmas. Who is that? One is Krishna himself. Who is the other one? The devotee of the Lord. He is also a Mahatma. So just give me 1 minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Which means that he is most magnanimous and unlimited, Ananta, and he is magnanimous, Dayalu. So he is very, what they say, he is
not going to think twice before he can bestow his blessings on his devotee. Somebody has raised their hand. I will take the questions. If I have about 2-3 minutes left at the end, maybe about 9:27, 28, I'll take your questions. So, and there is nothing which is not covered by the influence and energy of the Supreme Lord. ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान के शक्ति का आधार नहीं ले रहा है. So Krishna is telling that he is the cause of all causes and he is the source of everything. हर चीज का वही स्रोत है. He is the controller of demigods, देवेशा. देवों को भी वो नियंत्रण में रखते हैं. सारे देवता उनका सेवा कर रहे हैं. They're all serving him. He is the center of the whole universe. मतलब केंद्र बिंदु. It's something like the hub. उनके इर्द गिर्द जगत घूम रहा है. Nothing, everything is happening by his guidance. जब हम किसी को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं, मतलब our life is centered around him. So for a husband, sometimes wife is the center. For a son, parents are center. But whom should we make the center? We should all be the radials, and Krishna should be made the center. And the strong radials should take care of the weak radials. That means father, mother should take care of the child. The son should take care of the elderly father and mother. So this kind of an arrangement should make, and we must make the wheel strong, the wheel of our family, the life strong, with the hub being, the center being Krishna. And everybody in the family gets benefited. Because no one is greater than him. Asama Urdhva. There is nobody equal to Asama Urdhva. Urdhva. There is nobody greater than the Lord. So he is the greatest. He is greater than Brahma. Brahma भी उनको नमन करते हैं. Then, because Brahma is created by him. जो इस भौतिक जगत का सृष्टि करता है, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा, उसका सृष्टि किसने किया? भगवान श्री कृष्णा ने. भगवान श्री कृष्णा ने डायरेक्टली नहीं किया. अपने एक अंश शक्ति से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ. उनसे आए महाविष्णु, फिर उनसे चतुर्व्यूह आए, फिर संकर्षण आए, फिर नारायण आए, फिर चतुर्व्यूह आए, फिर ऐसे आते रहे. फिर देन केम कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, जिसके नाभि से ब्रह्मा आ रहे. बहुत डाउन द लाइन Brahma is coming. So Krishna is somewhere on the top. So Brahma is born out of the lotus stem of Garbhodakashayi Vishnu. और उसको क्या बोलते हैं? He is Swayambhu. Why is he called Swayambhu? Because गर्भोदकशाही विष्णु के पैर दबाती रहती है लक्ष्मी देवी. So goddess Lakshmi, Mata Lakshmi is massaging the feet of Vishnu, गर्भोदकशाही विष्णु. लेकिन लक्ष्मी के बिना, विदाउट द हेल्प ऑफ लक्ष्मी, भगवान ने ब्रह्मा का सृष्टि किया. सो दैट इज हिज ग्रेटनेस. इट डजंट रिक्वायर अ काउंटर पार्ट टू प्रोड्यूस अ सन हु इज ब्रह्मा. ऑल अदर डेमिगॉड्स मस्ट ऑफर द रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस. तो सारे देवता उनके नमन करते हैं. तो व्हाट अबाउट अस देन? वेयर डू वी स्टैंड? The Lord is above this material creation, is the cause of all causes. So again, Prabhupada again and again in the same purport 3 times he has told now. What he has told is above material creation. He is the cause of all causes. Sarva Karana Karanam. He is superior to the conditioned souls. Asama Urdhva means मतलब सबसे ऊपर है. तो भौतिक बद्ध जीवी से तो ऊपर है ही. As well as the material cosmic manifestation itself. So is para. He is not affected by cosmic material manifestation. Is therefore all great supreme. God is great. इसका मतलब इस श्लोक में हम सीख रहे हैं. So we will move further and take an other shloka. So today also I have just completed one shloka. Nothing to worry, as long as we are able to learn good things in a particular session. It is worth the time spent. 38. Tvam adi deva purusha purana tvamasya vishwasya param nidhanam
वित्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपा. Again there is a repetition because there is a wonderstruck Arjuna who is repeating these words in his anxiety. You are the original personality of Godhead from Adi Deva Purusha Purana. Purusha Purana. So you are the original personality of Godhead. You are the only sanctuary of this manifested cosmic world. त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम. सारे सृष्टि का आधार, सारे जीव जंतु का आधार कौन है? भगवान श्री कृष्ण. देन यू नो एवरीथिंग. वेत्तासि वेद्यम. आप सब कुछ जानते हो. एंड यू आर ऑल दैट इज नोएबल. वेद्यम च परम. सो टॉप मोस्ट नॉलेज you are, and you are param, you are supreme. Then you know everything and you are all that is knowable. तो 15वें अध्याय में हम पढ़ेंगे वेदांत कृत वेदांत विद एव चाहम. वेद का ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण जानने के लिए. और वेद का ज्ञान हमें क्यों पाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को जान के उनकी सेवा करने के लिए. इसीलिए सृष्टि हुआ है वेद ग्रंथ. तो वो लिमिटलेस फॉर्म, अनंत रूपा. This whole cosmic manifestation is pervaded by you. Tvaya tatam vishwam. So many places Lord says this Maya tatam idam avyaktam urtinaha. So many places Lord is telling this again and again. Still, if a person cannot believe it and come to the proper conclusion, then is the most unfortunate. तो सबसे unfortunate व्यक्ति कौन है? हम तो है नहीं. We are not. Why? Because anyone who has come under the shelter of Krishna, come under the shelter of Srila Prabhupada, pure devotee, can never be called as unfortunate. He is the most fortunate person. Because मनुष्य जीवन का लक्ष्य पाने के लिए जो चीज चाहिए, वो चीज के प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो. बस आपको चलना है, रास्ते पे आपको चलना है, रुकना नहीं है. कभी हार के कहीं रुकना नहीं है भक्ति के जीवन में. So everything is resting on the supreme personality of Godhead, therefore is ultimate rest. So he is the param nidhanam. तो हम थक के इसके शेल्टर में जाते हैं, उसके शरण में जाते हैं. हम सोचते हैं शादी हो जाएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, फिर हमारा जीवन सुधर जाएगा. हम सबको पता है कितना सुधर जाता है. It's a fact. I'm not trying to tease all of you. Actually, it's a fact. Because material world is not meant for that. कि किसी और व्यक्ति से अगर आपको आपका दुख मिट जाएगा, तो फिर भौतिक जगत का जो सर्टिफिकेट भगवान ने बनाया है, दुखालय अशाश्वतम, उसका क्या मीनिंग है? आपको दुख मिलेगा, व्यक्तियों से मिलेगा, सगे संबंधियों से मिलेगा, जो आप दुश्मन समझते हो उनसे मिलेगा. तो केवल दुश्मन से नहीं मिलेगा, सगे संबंधियों से. क्लोजेस्ट पीपल आल्सो विल गिव अस दुख. तो सो कॉल्ड सुखा इज व्हाट? द डंकिंग ऑफ द पर्सन इन वाटर. जब पिछले जमाने में जब पनिशमेंट देते थे, कैसे देते थे राजा? तो उस व्यक्ति को सर के बल डुबा देते थे. फिर थोड़ी देर बाद जब उसका श्वास अभी तो टूटने वाला है, फिर उसको उठाते हैं. तो जो दैट रिलीफ दैट ही फील्स, दैट इज कंसिडर्ड एज एंजॉयमेंट इन मटेरियल वर्ल्ड. हमें उस सिचुएशन में रहना क्यों है? Why should we be in that situation at all? So we continue. He is the knower of everything that is happening in this world. भगवान से हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं. We can't fool around with the Lord. Is right sitting in our heart. इसी से भी हम छुपा सकते हैं. छुपा के हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं. लेकिन एक व्यक्ति है जिससे हम छुपा नहीं सकते हैं. कौन है? भगवान ही खुद, स्वयं भगवान. Because he's there in our hearts and he's seeing everything as the witness. He's the known and knowable. Vedanta with Vedanta Krit. He is the object of knowledge. ज्ञान का पराकाष्ठ. The ultimate benefit of knowledge is to know Krishna. Because he is all pervading. तो हर जगह वो मौजूद है. Because he is the cause in the spiritual world. न केवल
भौतिक जगत का स्रोत है, आध्यात्मिक जगत का भी स्रोत और आधार भगवान श्री कृष्णा है। इस ट्रांसेंडेंटल, दिव्य है, परा है। ही इज ऑल्सो द चीफ पर्सनालिटी। तो ही इज द पुराण पुरुषा in the transcendental world. So we'll try to fit in one more sloka. Vayur Yamo, and I'll display it for you. Hare Krishna, Hare Krishna. Just this sloka we will try to fit in. Vayur Yamognir Varuna Shashanka Prajapatistam Prapitamahascha Namo Namaste Stu Sahasra Kritva Punascha Bhuyopi Namo Namaste. So, what is Arjuna telling here? And in turn, what is Sanjay describing? You are air, Vayur, आप हवा, मतलब वायु देव का रिप्रेजेंट आप हो। फायर, अग्निर, वाटर, वरुणः, you are the moon, Shashankah, you are the supreme controller, Prajapatis, Tvam Prapitamahascha, you're the grandfather also, your father, grandfather, पिता और पितामह, प्रपितामह, प्रजापति, पिता। Thus I offer my respectful obeisance unto you 1000 times. नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा, बार 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 मैं आपको नमन कर रहा हूँ। You deserve more than that, लेकिन मैं सहस्र 1000 कर पा रहा हूँ। Again and yet again, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार दंडवत मैं आपको कर रहा हूँ। This is being expressed by Arjuna. The Lord here is expressed as air. Vayur, Yama. Yama means controller. One who controls Vayu, Agni, everything is controlled by the Lord. Because the air is the most important representation of all the demigods. So Vayu Deva has a very special significance in the existence of all living entities. सारे जीव जंतु का अस्तित्व के लिए वायु देवा इस का महत्व है। Being all pervasive, क्योंकि हर जगह वायु पहुंच सकता है। अर्जुन also addresses Krishna as grandfather. पहले प्रजापति, फिर प्रपितामह, तात श्री, because he is the father of Brahma. ब्रह्मा सृष्टि करता है। ब्रह्मा is already actually प्रपितामह, पितामह, और उसके ऊपर जो एक और पिता आएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर आप बोल सकते हो, भगवान श्री कृष्ण है। The first living creature in the universe, that is Brahma, is created by Lord Shri Krishna himself. So there are some people who are having questions, I understand. So what we'll be doing is, at the end of this session, the people who want to ask questions, people want to be a part of the question and answer session, can re-log in. And we will do we'll do a 15-minute question answer session. Quick, I'll do a recap. You must be present in the present. And present is the gift of the Supreme Lord. Present is the present of the Supreme Lord. So, उपहार है आज, जो the power of now. You must live in the now. ना कल में जीना चाहिए, ना भविष्य में हमें जीना चाहिए. To what extent you have to plan, you must do. But you must not live in the future. You must not live in the past. You must learn from the past. Be a good person be a better person in the present. And of course, take care of the future by doing what has to be done. So our clock may stop, but time does not. So we must not waste time. Ready रुक जाएगा, लेकिन समय नहीं रुकेगा. इसलिए हमें कभी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए. Time can be a fire in which one can burn or one can learn. समय ऐसा चीज है, एक अग्नि है जिससे हम जल जाएंगे या फिर कुछ सीख जाएंगे. तो क्या करेंगे हम इस समय से, ये हमारे ऊपर है. With our intelligence, this is how we have to manage our life. Thank you very much for joining me today. We will meet again tomorrow at the same time, continuing with the 11th